Hello everyone and welcome back to Ansarkari. Today we will be revising current affairs in a quick manner for the month of February 2023. So let's get to the first question. First question is about Netra project and we have four statements we have to state true or false. Let's read the first statement. First statement is it is an early warning system in the space to detect space debris and hazards. To Indian एकदम true है. It is early warning system. कोई भी space debris जो कि Indian satellite को कोई भी harm पहुंचाने पाए इससे पहले में एक warning आ जाए. Netra is an early warning system. That is true. Let's read the second statement. Second statement is space debris tracking radar has a range of 1500 kilometers. 1500 kilometers range है of the radar. Third statement is Kessler syndrome is the overpopulation of space with objects and debris. Kessler syndrome हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. एंड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. जब भी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड डेब्रिस स्पेस में ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है उसको ही हम केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं. We can remember this and note this down. Fourth statement is about space debris is present in medium earth orbit. First of all ये statement को true और false बोलने से पहले हमें medium earth orbit की range पता होनी चाहिए. And जो space debris होता है it is present on the boundary of the LEO. That is also the starting of MEO. So हमारे पास रडार की रेंज भी है 1500 किलोमीटर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. We have 4 or 5 statements regarding PLI scheme and we have to say true or false for the following. So first statement पढ़ते हैं. First statement is about it covers manufacturing sectors. That is true. Second statement is it is a part of national policy of electronics. That is also true. Third statement is financial year 2019 to 20 is used as the base year for calculation of incentives. That is also very true. So last statement is about incentive is calculated only on the basis of incremental sales. In most of the cases incremental sales के basis पे ही calculate किया जाता है, but कुछ exceptions भी होते हैं. For example chemical cell batteries industry, टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो गई, ड्रोन इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे जो इंसेंटिव है it is calculated on the basis of sales, on the performance, on the basis of local value addition, so that there are some exceptions and this statement is not entirely true, so hence this statement is false. Let's get to the next statement. यहाँ पे हमें एक statement दी गई है, we have to state true or false. In UNSC, any member of the United Nations which is not a member of the Security Council participates in every discussion. Here we are talking about United Nations Security Council. कोई भी member of यूनाइटेड नेशंस जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है वो हर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो कर सकता है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड कंटेन्स द क्वेश्चंस अबाउट बजट. सो बजट इज गिवन बाय डैश एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं. बजट इज अलोंग द लाइंस ऑफ टू pronged ग्रोथ स्ट्रैटेजीज first unveiled in 2019. We have to say true or false for the following. So पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, बजट इज गिवन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, बजट इज अलोंग द लाइंस ऑफ द टू pronged ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फर्स्ट unveiled in 2019. दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. जिन स्ट्रैटेजीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट आर अबाउट द मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इंक्रीजिंग द कैपेक्स, ऑल्सो raising the revenues, raising the revenues. कैसे raise करेंगे? By disinvestment. So yes, the statement is true. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स. हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे पास एक इमेज भी है जिसको हम रेफर कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे हमारी रूट्स ग्रो कर रही हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है, पर कोई भी सॉइल नहीं है, तो इसी से हिंट लेके हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स इज अ सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक. यहाँ पे हम सॉइल यूज़ नहीं करते, हम एक वाटर बेस्ड सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसमें हम फर्टिलाइजर्स एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. जो प्लांट की रूट्स है उसको उसमें डिप करते हैं एंड देन दी प्लांट फर्दर ग्रोज. सो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हैं एंड अबाउट दी हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स एंड वी हैव टू स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक. ये हमने अभी बात की थी, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ट्रू. Second statement is plants cannot be cultivated anywhere. That is not true. With this technique, plants can be cultivated anywhere. Third statement is they are grown in a balanced nutrient solution.
दैट इज़ ट्रू, हमने अभी अभी बात की थी दैट द प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसको हम डिप करते हैं ना बैलेंस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जिसमें फर्टिलाइजर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन वाटर इज मिक्स्ड एंड द रूट्स आर डिप्ड इन दैट सोल्यूशन. So yes, the third statement is true. They are grown in a balanced nutrient solution. Fourth statement is vining plants are grown best with this technique. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रू या फॉल्स स्टेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वाइनिंग प्लांट्स क्या होते हैं. सो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में वाइनिंग प्लांट्स आर दोज दैट कैन नॉट ग्रो ऑन देयर ओन एंड दे नीड सपोर्ट टू ग्रो फर्दर. सो वाइनिंग प्लांट्स की मैनेजमेंट मुश्किल होती है. दैट इज़ वाई वाइनिंग प्लांट्स ही एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हम इस टेक्निक से इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं. बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल टोमेटो, क्यूकम्बर एंड स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट वगैरह, जो कि हम आराम से इस टेक्निक का यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं कहीं पे भी. लास्ट स्टेटमेंट इज दे आर प्रोन टू सॉइल बॉर्न डिजीजेस. सॉइल बॉर्न डिजीजेस से कैसे प्रोन होंगे, बिकॉज ये एक सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक है, बट दे आर प्रोन टू वाटर बॉर्न डिजीजेस. सो लास्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट वॉज फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट वॉज ट्रू, fourth statement was false. Vining plants cannot be grown very easily. Management मुश्किल हो जाता है with this technique. Last statement is also false. So let's get to the next question. Next question is about NISAR. So first of all, NISAR stands for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. Which statement is correct? 3 statements हमें दी गई हैं. First statement read करते हैं. It will be placed in low Earth orbit. लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हमने काफ़ी बार बात कर ली है, तो इसको भी एक बार हम देख लेंगे. लो अर्थ ऑर्बिट की रेंज होती है 500 to 1500 किलोमीटर्स. सो येस, इट विल बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट. सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैप द मून. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैप द मून. So this statement is false. Its objective is not to map the moon. Its objective is to map the earth. It comprises of dual frequency imaging radar. Dual frequency imaging radar. दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि हम 2 फ्रीक्वेंसी के रडार्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एल बैंड एंड एस बैंड. एस बैंड रडार विल बी प्रोवाइडेड बाय इसरो. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, वी विल बी टॉकिंग थोड़ा बहुत अबाउट जियो, मियो एंड लियो. फर्स्ट ऑफ ऑल जियो, मियो, लियो क्या होते हैं? ये हमारे अर्थ ऑर्बिट की अलग अलग रेंजेस हैं जहाँ पे हम सैटेलाइट्स प्लेस करते हैं अराउंड द अर्थ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लियो की, दैट इज़ लो अर्थ ऑर्बिट. इसकी रेंज होती है 500 to 1500 किलोमीटर्स. अब इसकी रेंज से हमें पता चल रहा है कि अर्थ सरफेस की क्लोज है तो एक स्मॉलर सरफेस एरिया ही कवर कर पाती है. स्मॉलर सरफेस एरिया कवर कर पाती है, बट क्लोज होने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. जैसे ये सैटेलाइट इमेजिंग में यूज़ होती है. सैटेलाइट इमेजिंग में जब इसको हम यूज़ करते हैं तो ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हमें देती है सरफेस की. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, दैट इज़ 2000 to 35,000 किलोमीटर्स. ये इसकी रेंज होती है. ये जियो और मियो के बीच में इसकी रेंज है. इसको नेविगेशन सैटेलाइट्स हो गया, उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं. फॉर एग्जांपल जीपीएस हो गया. लास्ट हमारा है जियो, दैट इज़ जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट. इसकी रेंज है एट 3600 किलोमीटर्स अबव द सरफेस. अब जियो स्टेशनरी से हम एक और चीज़ इसमें हम जान लेते हैं कि ये सैटेलाइट जो होती है हमें हमेशा फिक्स पोजीशन पे ही दिखाई देती है. लगता है कि एक ही पोजीशन पे ये अटकी हुई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ की जो डायरेक्शन है रोटेशन की, दैट इज़ वेस्ट टू ईस्ट, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव कर रही होती है, सर्कल कर रही होती है. कहाँ पे सर्कल करती है? ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. सो दैट इज़ वाई इसके नाम से भी हमें पता चल जाएगा, स्टेशनरी हमें फिक्स पोजीशन पे ही दिखाई देती है. इसकी एप्लीकेशन होगी वेदर मॉनिटरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, एंड ये लार्ज एरिया कवर करती है क्योंकि इसकी रेंज भी ज़्यादा है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा हम सार के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सार स्टैंड फॉर सिंथेटिक अपर्चर रडार. इसमें हम माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे फॉर एग्जांपल रिवर, माउंटेन, फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी अर्थ सरफेस पे है वो हम माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं. एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन इसके काफ़ी सारे हैं, कुछ की हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका आइसबर्ग्स को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ऑयल स्पिल्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट की इमेजिंग करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इनफैक्ट इंडोनेशिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट को इमेज करने के लिए इसको यूज़ किया भी जा रहा है. Let's get to the next question. Next question is in reference to Visva Bharati University, which of the following statement is correct? यहाँ पे हमें 3 statements दी हैं. First statement is it was founded by Rabindranath Tagore in 1921. That is true.
नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट ओपन ईयर एजुकेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, ओपन ईयर एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनिवर्सिटी. So that statement is also true. Rabindranath Tagore, he believed in the open air education system and he introduced the same in the university. Third statement is, until the independence, it was given the status of Central University in 1951. That statement is also true and ये हमने recently news में पढ़ा था because Visva Bharati University will be the world's first living heritage university. So that is also an important point. Please note it down about Visva Bharati University. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको हमें मार्क करना है ट्रू या फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल constituencies in our country and has been frozen until the first census after 2036. So first half is statement का true है, that delimitation is a process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country. That is true. But the second half है that that it has been frozen under the first census after 2026. So it has been frozen but until 2026. So this statement is false. About seed fund is an investment fund that provides financial support to startups. So सीड फंड के बारे में क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. येस, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फंड जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टार्टअप्स को फॉर दी फाइनेंशियल सपोर्ट. जो भी उनकी कंपनी का फाइनेंस है, इनिशियल ऑपरेशंस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केट रिसर्च है, उसके लिए ये फाइनेंसेस उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय दी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. DPIIT ने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी भी सेटअप की है दैट विल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट मेमोरी बी सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज ऑन एनकाउंटर विद आइडेंटिकल वेरिएंट्स. सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ मेमोरी बी सेल्स क्या होता है, एंटीबॉडीज़ कब प्रोड्यूस हो रही हैं ऑन द एनकाउंटर विद आइडेंटिकल वेरिएंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारा इनकाउंटर होता है किसी भी एंटीजन के साथ, तो हमारी हमारी बॉडी में जो बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. फिर फंक्शन आता है टी सेल्स का. टी सेल्स जो होते हैं दे टेक दैट एंटीबॉडी एंड दे यूज़ इट ऑन द साइट ऑफ द एंटीजन, जिससे कि एंटीजन पे हम अटैक करते हैं एंड बेसिकली आवर बॉडी कोप अप्स फ्रॉम द डिजीज़. सो बेसिकली अगर एक वेरिएंट से हमारी बॉडी का इनकाउंटर हो चुका है एंड सिमिलर उसी से मिलता जुलता वेरिएंट से फिर से हमारी बॉडी का इनकाउंटर हो रहा है, तो हमारी जो बॉडी है वो मेमोरी बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है. मेमोरी बी सेल्स हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं एंड वो दोनों स्ट्रेन्स के फीचर्स को कंबाइन कर देते हैं, जो भी ओल्ड स्ट्रेन जिससे इनकाउंटर हुआ था एंड न्यू स्ट्रेन, एंड दोनों को कंबाइन करके वो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. सो ये कब होता है? ये तब होता है जब सिमिलर वेरिएंट्स इनकाउंटर हो रहा होता है, बट यहाँ पे लिखा है आइडेंटिकल वेरिएंट्स. वेरिएंट्स आइडेंटिकल नहीं होते, वेरिएंट्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मेमोरी बी सेल्स तब प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज जब किसी सिमिलर वेरिएंट से इनकाउंटर होता है बट दैट वेरिएंट इज नॉट आइडेंटिकल. Next question is, under Article 3, Parliament can dash, dash and dash. Parliament can do what under Article 3? So Parliament can increase or diminish area of any state. It can change the name of any state or it can alter the boundaries of a state. So ये तीन हम consider कर सकते हैं under Article 3. Thank you so much. Please subscribe to Ansarkari and keep watching.